चलो सो करेलू व्हाट वी हैव डन लास्ट राइट हियर, यहाँ पर से बीच में रुक गए थे हम लोग. तो दिस विल बी -7, right? It will become -7. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. -7. तो नीचे क्या बचेगा अभी? 0. 0. यहाँ पर अलग से लिखता हूँ 0. साइन चेंज करवानी. Plus 15x minus 14. नो साइन चेंज करवानी बाकी ने. This will be minus, this will be plus. So this Sir, goes but minus 14x આવશે ને એક +14 जगह -14 છે તો -13 થશે ને. और यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. देखो फिर से लिखता हूँ, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, ये -7x² + x -7, ये वाला ऊपर की टर्म थी ये वाली, और हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके क्या आया? -7x + 14x -7 अभी तो साइन तो चेंज करनी ही पड़ेगी. डिंग 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 डिंग. सॉरी, चाहे चेंज कहाँ की? डिंग 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 डिंग, ऐसा करना पड़ेगा. तो ये अगर चेंज करते हैं तो ये गया. अभी बोलो मेरा ये क्या आएगा? -13x आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ. Yes, sir. Yes, sir. कट हो जाएगा. +7 -7 विल गो ऑफ. तो यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा. अभी इसको मैं अगर px + q के साथ कंपेयर करूं जो कि मेरे को बोला गया है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p and q. So if I multiply, if I compare this with this -13x + 0, आप आसानी से बता पाओगे. You can easily show that, or you can easily conclude that p is equal to -13 and q is equal to 0. 0. So this is my answer. My answer is p is equal to -13, जो कि x के साथ में जो भी है वो मेरा p. तो x ની સાથે કોણ છે? -13. So -13 is my p, and the constant term, whatever constant term I'm getting, is q. So if there is no constant term, तो हम लिख सकते हैं constant term 0. Clear? Yes, sir. Yes, sir. बहुत है, बहुत ही अच्छा. ओ, इतना बड़ा सम, क्या बात है. चलो करते हैं इसको भी. नो, haven't called anyone. अच्छा बेटा, तो पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टू हेल्प अ पुअर स्टूडेंट, आर यू डोनेटेड अल्फा पेन्स एंड बीटा बुक्स टू हिम, where alpha and beta represents the polynomial of this. ये सिर्फ कहानी बनाई गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर. दिस इज जस्ट अ स्टोरी दैट दे हैव मेड. अगर हम इसमें से मैथमेटिकल पॉइंट्स निकाल ले तो मैथमेटिकल पॉइंट्स कुछ इतने ही हैं. दिस इज माय पोलिनोमियल and alpha and beta are its zeros, where alpha represents pen and beta represents book. ओके, सही बात है. तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये दोनों चीज हम इसमें से निकाल सकते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द कोएफिशिएंट्स. a is equal to 1, b is equal to -5 and c is equal to 4. 4. Are my coefficients. Now, since I know the coefficients and relation, I can say alpha plus beta is equal to -b upon a, which is equal to minus of -5 upon 1. Minus of -5 upon 1 is equal to 5. I got one equation like alpha plus beta is equal to 5, or second one is alpha into beta is equal to c upon a, which is equal to 4 upon 1 means 4. So alpha into beta is equal to 4. Just a minute.
भारती, બીજી વખત ફોન ઉચકીને વાત કરો, પપ્પા ક્લાસ લેશન કરે. ओके, सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है. तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अगर ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गए, देखो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दिस इज अनदर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. Then using this I can find out the value of alpha and beta. अब NO यूज करें, I can find out the value of alpha and beta. क्यों? क्योंकि आगे हम सम पढ़ेंगे. आगे सम में क्या लिखा है? Arya also donated this many pens and this many books. अगर हमको अल्फा और बीटा मिल जाएंगे, if we get the value of alpha and beta, तो कितनी पेन और कितनी बुक आर्या ने डोनेट की, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Yes, sir. Yes. તો આ આર્યુ છે, આર્યુ એને આલ્ફા પેન અને આ બીટા બુક મૂકેલી છે, તો એ પણ મળી જશે. આલ્ફા અને બીટાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો. ઠીક है, एक मिनट. Sorry, it was an urgent call, so that I had to pick it up. Okay, so what I was telling you that अल्फा और बीटा इसमें से मिल जाएंगे, सिंस देयर आर टू अननोन्स. एक चीज आप समझ लीजिए, whenever I have two unknowns like alpha and beta, I need two equations. तो यहाँ पर two equations are already there, alpha plus beta, alpha into beta, two equations are already there. Using these two equations, I can find out the value of alpha and beta both. Since there are two equations, I can find two unknowns. एक बार हमको अल्फा और बीटा मिल गए तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं. तो मतलब अराउंड आर्या ने कितनी पेन और कितनी बुक डोनेट किए, वो भी हमको मिल जाएगा. उसके बाद में बताया गया है कि फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर नंबर्स ऑफ पेन्स एंड बुक्स ऑफ द आर्या. मतलब दिस इज द जीरो, दिस एंड दिस आर द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम. उसके ऊपर से हमको मतलब एस एंड पी वालू आपने जो करेलो ने, एस एंड पी, तो सेम थिंग वी कैन डू. Either we can go this way by finding alpha and beta, or we can proceed with using this sum and the product. तो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, right? I'll teach you with both the methods. So सबसे पहले हमने क्या find किया? What we have found is alpha plus beta, and alpha into beta is already there with me. Now we'll use this and find out S and P. S and P किसको बोलते हैं वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको समझाया. S मतलब ये नए वाले जो है, this newer, कहाँ गया, गायब हो जाता है, this newer alpha and newer beta. चलो इन्हें ऐड करो, सूत्र से 2 alpha plus 3 beta. अरे क्या भी बीटा, 3 बीटा. बेटा कितने बेटा, आप लोग सुन पा रहे हो ना? Yes, sir. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 5 alpha plus 6, 5 alpha plus 5 beta. 5 multiplied by alpha beta is already there, so it is Is equal to 25. yes, very good. अभी हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ दिस मतलब P. तो P क्या आएगा? P means this into this, 2 alpha plus beta multiplied by 3 alpha plus 2 beta. Sir, 3 beta से. Yes, yes. अभी मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, देन ये वाला, अभी इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 अल्फा 9 alpha beta plus 6 beta square. ये मजेदार केस है. दिस इज वेरी नाइस केस नो, क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है, इसको थोड़ा रिजोल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है. यू माइट गेट प्रॉब्लम इन दिस. तो ये हो जाएगा 13 अल्फा बीटा. इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. बट ये जो हुआ ना, ये हमारे पास है, ये चीजें, इसको हमको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करनी होगी. we'll have to convert it into alpha beta somewhat like this. So I'll have to add one page, because this is the last one.
ओके, तो मिल गया मेरे को पेज एक नया वाला। तो नए वाले पेज में हम इसको शिफ्ट करेंगे, ध्यान से देखना। 6 अल्फा स्क्वायर, बीच में 13 एंड लास्ट में 6। सो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। आहूजा तूने? Yes, sir. एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 4। ये भी तो हमारे पास था, यही है ना? हाँ यही है, कंफर्म। ये देखो, चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने बताया, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे पी फाइंड करने के लिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, प्रोडक्ट। तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर को मैं साथ में लिखूंगा, इसको साइड में रख देता हूं। I'll keep it aside, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है मेरे पास। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज ऑलरेडी देयर, सो दैट देयर इज नो इशू विद दैट। लेकिन इसको मेरे को अभी भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई डू इट The 6 common and alpha plus beta whole square. अल्फा प्लस बीटा कॉमन, अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वी नो हाउ टू गेट इट। पता है आपको? नहीं पता है तो मैं फिर से लिखा देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से लेके आए सर? ये कहाँ से लेके आए? तो बच्चा, मैंने बहुत बार आपको सिखाया ये वाला, या आपको पूछा गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे वाले सम में हमने करवाया था। कैसे करते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस थोड़ा 2 अल्फा बीटा। लेट मी डू इट, मेरे को जल्दी से करना है। आपको ऑलरेडी करवाया है, यहाँ पर जस्ट क्विक रिवीजन बता रहा हूँ जो मैंने आगे करवाया था। तो ये वाला माइनस होके यहाँ पर जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आ गया। पता चला आपको कहाँ से आया? Yes, Yes, sir. sir. So that's the way I've got it. I have got the value of this alpha square plus beta square this way. This is just a reference. अभी आप बोल सकते हो 6 multiplied by alpha plus beta is 5 whole square, 5 square 5, minus 2 2 into bracket alpha into beta is 4 4 यहाँ पर plus 13 4 25 minus 8 13 4s are 52 6 into bracket, ये वाला कट हो जाएगा। पहले 5 निकाल दो, आ सबट्रैक्ट करता सीखो जो इजीली। 70 5 निकाल दो 20, उसमें से और 3 निकाल दो 17। अब बोलो 17 6 जा 17 6 जा 104. 104, एब्सोल्युटली करेक्ट। टेबल्स में तो लोचे है ही आपके, मेरे को पता है। 156, तो 156 इज P एंड S कितना था हमारा? पहले देखो, पहले वाले पेज में S कितना था? S मींस सम ऑफ द प्रोडक्ट 25, तो S is 25, P is 102 आ गए. अनु सर 102 आ गया 102 आ गए मल्टीप्लिकेशन. 2 आवे 102 आवे 4 कौन बोलियो 2 जावे फाइनली। सो दिस विल बी 4, ठीक है। सो दिस इज 154 154। So now can you write down the polynomial from this? X यस सर minus px plus, सर ऐसे x हर बार यही लिखते हो, और वो भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ब्रैकेट नहीं आएगा। वो पोलिनोमियल में लिखते हैं ना px, वही आ जाता है मेरे, ये नहीं है। तो ऐसे होना चाहिए, सम इज इन द मिडिल टर्म, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 154, ये हो गई मेरी नई पोलिनोमियल। दिस इज माई न्यू पोलिनोमियल। तो मुझे तो सब पता चल गया, आई गॉट द थिंग। इन फैक्ट ये वाली नई पोलिनोमियल है, वो वाली पुरानी पोलिनोमियल थी। अभी फिर से एक बार क्वेश्चन को देखो,
You look at this question again. Find the polynomial, ये मेरा काम हो गया. Find the polynomial whose zeros are this and this. ये काम तो मेरा हो गया. ठीक है, वही तो करना था. Now इसके बाद में क्वेश्चन, तो ये काम हो गया. मेरे को अल्फा की सेपरेट वैल्यू या फिर बीटा की सेपरेट वैल्यू नहीं फाइंड करनी. अगर फाइंड करनी भी होती तो कर सकते हैं हम लोग, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको. वी कैन. लेकिन फाइंड यहाँ पर नहीं करनी है हमको. जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जितना पूछा गया उतना ही करना है. व्हाट वी आर आस्क्ड कि ये वाली पोलिनोमियल है, उसके दो जीरो अल्फा और बीटा है, और हमको ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरो ये और ये होने चाहिए. तो वो तो हो गया हमारा काम. नाउ हमको नहीं पूछा कि आर्या ने कितनी पेन दी, इतने कितने बुक दी, आरव ने कितनी दी, आरिव ने कितनी दी, कुछ नहीं पूछा. सो वी डोंट नीड टू फाइंड दैट आउट, क्योंकि पूछा नहीं गया. फाइंड क्या पूछा? एक्सप्लेन व्हाई आर्या गॉट इंस्पायर्ड बाय द डीड ऑफ आरिव. आरिव ने जो किया उससे आर्या इंस्पायर कैसे हुआ. अभी इसी, this is a very rhetorical question, or it is a generalized question. It has nothing to do with maths. It has something to do with morality. क्योंकि इसके ऊपर से हमको कुछ नहीं पता चलेगा. उसने दिया तो इसने क्यों दिया, वो तो हमको नहीं पता. क्यों इंस्पायर, अगर कोई देता है किसी को दान, if someone gives some donation to another person, so why we get inspired? हमको भी लगता है चलो उसने डोनेट किया, हमको भी हेल्प करनी चाहिए. तो दिस इज जस्ट अ मोरल क्वेश्चन. डोंट गेट मच कंफ्यूज्ड. इसका कोई आंसर नहीं है. यही इसमें इतना ही लिखना है कि वी हैव टू हेल्प समवन एल्स. ये उसने सीखा आरिफ से, और उसको देख के उसको खुद को भी लगा ये मेरे को भी करना चाहिए. दैट्स व्हाई ही डोनेटेड. ठीक है. और पेन एंड बुक क्यों डोनेट की, अगर आपको ऐसा पूछे तो आप मोरालिटी में लिख सकते हो. बिकॉज एजुकेशन इज द की थिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी. इफ समवन स्टडीज वेल, becomes gets job, becomes prospered, so everything gets settled. तो यहाँ पर पेन और बुक क्यों, why he got inspired, इसका कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है. तो ये सम तो इजी आ गया. Yes, sir. ये ऐसा ही सम है. देखो मैं बताता हूँ ये कैसा सम है. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस काइंड ऑफ सम. ऐसा ही है. इसमें भी हमने क्या किया था, ये पोलिनोमियल है, अल्फा एंड बीटा, उसमें पेन और वगैरह सब लिखा गया है. पेन, ये बुक है, ऐसा कुछ लिखा गया है. और ये वाले जिसके जीरो हैं वैसी पोलिनोमियल फाइंड करो. तो सेम सम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Same here. Similar sum. It is similar sum, yes. એના જેવો જ સમ. બટ આ ક્વેશ્ચન ને જુઓ અને આ ક્વેશ્ચન ને જુઓ. આ ક્વેશ્ચન ને જુઓ એટલે અડધા લોકો તો એમ જ બેસી જાય, ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा सम है, मैं तो कुछ समझ भी नहीं आया. अरे भैया कुछ भी तो नहीं है. पोलिनोमियल है, अल्फा बीटा है, और नए वाले अल्फा बीटा है. એટલું જ તો છે. તો પેલા સમને પણ તમે પાછો ચેક કરો. લેટ મી गिव इट. पोलिनोमियल है, यस. अल्फा बीटा है, यस. और नए वाले अल्फा बीटा है, यस. तो दीज टू आर सिमिलर फंक्शंस, सिमिलर सम्स. लेकिन है, होता क्या है कि जब यहां पर आता है मामला, व्हेन यू कम ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन. यहां पर मामला आता है, जैसे कि हम लोग ये सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, व्हाट वी गॉट ओवर हियर. यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा. अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो सम पीपल माइट गेट कंफ्यूज. बट आप देख सकते हो, आप ही में से किसी ने मेरे को बताया कि 6 कॉमन निकाल दो, ये करो, हो जाएगा. मतलब आप भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो गेट द वैल्यू. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर આપણે આગળ કરેલું જ છે. So using that same formula you can do it right here. Put the values of alpha plus beta and alpha into beta. Just simplify it and you will get your answer. ठीक है. Whenever, जब भी हम लोग ऑफलाइन होंगे, राइट, वी होप दैट वी गेट ऑफलाइन सून. लेकिन पता नहीं ये सीन जो अभी सिचुएशन चल रही है कैसे कितने टाइम में हैंडल होगी, नोबडी नोज. एज एंड व्हेन वी गेट ऑफलाइन, जब भी हम ऑफलाइन होंगे, तो ऐसी सारी ये सारे सम जो है मैं आपसे करवाऊंगा एक बार. जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, मैं आपके पास आकर आपको फिर से बताऊंगा कि आपकी ये वाली गलती हो रही है या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है. इसीलिए अभी डोंट स्ट्रेस इट आउट, क्योंकि आप पहली बार ही 10th में आए हो. है नवा 10th में आवेला છે. આવી ગયેલા છે કોઈ? રિપીટર છે કોઈ? सर
તબ નહીં હે તો નવા નવા છે એટલે થાય અને સપોઝ કે આ જ સમમાં હું કંઈક એડ કરું ઇફ આઈ એડ સમ ટ્વિશા સોરી ટ્વિસ્ટ ટ્વિશા તો સ્ટુડન્ટ નું નામ છે if I add some twist to this sum તો I may ask you કે ભાઈ આર્યુએ કેટલી પેન આપેલી આર્યાએ કેટલી પેન આપેલી હું આપેલું बुक કેટલી આપેલી I may ask you like this तो ये फाइंड करना भी कोई मुश्किल नहीं है चलो मैं दिखाता हूँ अल्फा प्लस बीटा we've got 5 अल्फा इंटू बीटा we've got 4 तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू है उसमें से मैं अगर बीटा को निकाल दूं तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा और इस वैल्यू को यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पर रखूंगा बीटा नहीं चाहिए मेरे को देन आई विल गेट अल्फा और बीटा की जगह पे 5 माइनस अल्फा तो ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा देखो आप मल्टीप्लाई करो 5 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अभी ये माइनस है तो मैं दोनों को इधर ले आऊंगा ये वाली साइड पे सो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस अल्फा स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 5 अल्फा तो दिस इज माय क्वाड्रेटिक polynomial now I can easily factorize this 4 1 जा 4 माइनस ये बोलता है यस तो ये भी माइनस रहेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सब जिंदा है ना Yes, sir. Yes, sir. यार अभी हम जिंदा है यार सो मत जाओ देखो मैं गलती से गलती करूंगा आपको मेरे को बताना है आपको अलर्ट रहना है क्या गलती की मैंने अल्फा सर लास्ट में 4 है मतलब जागता रह जाए अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 1 0 if alpha minus 4 is equal to 0 alpha is equal to 4 and alpha minus 1 is equal to 0 that Alpha equals to 1. ठीक है अल्फा गलती की मैंने बोला ही नहीं तो अल्फा इज इक्वल टू 4 अगर इफ अल्फा इज 4 यहां पर मैं लिखूंगा अल्फा इज 4 तो बीटा कितना होगा 5 माइनस 4 1 Equals to 1. तो इज इक्वल टू 1 तो अल्फा जब 4 होगा तो बीटा 1 होगा मतलब ये वाला जो आरिव है अगर 4 पेन देता है और 1 बुक देगा या फिर अल्फा में 1 भी ले सकता हूँ इफ आई टेक अल्फा इज इक्वल टू 1 pen or 4 book. yeah it will be 1 pen and 4 book which one actually do you seem to be good 4 pen and 1 And 1 book. 2 पेन एंड 1 बुक राइट ठीक है एक पेन और 4 बुक देखेंगे तो एक पेन से लेकिन कुछ भी हमको तो दोनों ही आंसर रखने कोई दिक्कत नहीं अभी आर्या के बारे में सोचो नाउ थिंक ऑफ आर्या ने कितनी पेन दी है तो पेन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा अगर हम पहला वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं जैसे कि 4 पेन मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 तो इसके ऊपर से कितना आएगा 2 into 4 2 into 8 4 plus 3. to 1 8 plus 3 is equal to 10 11 और बुक कितनी दी होगी बुक 3 alpha plus 2 beta 3 into 4 12 plus 2 is equal to 14. yes 12 plus 2 is equal to 14 तो उसने कितनी दी थी 4 पेन 1 बुक ये बोलता है अच्छा तू इतना देता है देखो मैं क्या करता हूँ I'll give 11 pen and 14 books उसने ये सोचा अभी क्यों सोचा ये करता है तो मैं भी करता हूँ और कुछ नहीं मोरालिटी ठीक है या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते जब अल्फा की वैल्यू 1 हो ये हो तो उसके हिसाब से भी हम लोग ये फाइंड कर सकते वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सेम फॉर दिस तो अगर हमको पेन कितनी दी बुक कितनी दी आर्या ने कितनी दी आर्यव ने कितनी दी ये पूछा गया है तो ही करना है लेकिन इस चैप्टर में ये वाले सम नहीं पूछे जाएंगे आपको पूछा जाएगा पोलिनोमियल बनाओ पोलिनोमियल क्या आएगी यही पूछेंगे ठीक है सो आर यू क्लियर विद दिस एक्सरसाइज Yes, sir. आई थिंक दिस Yes, sir. yes sir
तो फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ये वीडियोस देख के डिफिकल्टी आप सॉल्व करा सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में, नहीं सर वीडियो में तो कहीं समझ नहीं पड़ी, आप ये भी बोल सकते हो। लाइव सेशन में कुछ नहीं समझ में आया, अगर ये स्टेप में कुछ समझ में आया तभी बोल सकते हो सर આ કાથી આવ્યું એમ પૂછાય, પણ તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો પૂછતા નથી. મેની ઓફ યુ આર નોટ આસ્કિંગ. एक्चुअली यू शुड आस्क. जब भी आपको कोई